All right. Today's topic we have here is the demand. We are studying the chapter theory of demand. Now let's first look at the definition of demand. Okay. So you can also, write the definition along with watching the video. Okay. So I'll identify the keywords for you. Okay. So when we look at the definition of demand, demand is in normal terms, demand is something that you want and you are also willing to get it. So there are two things which are really important. One is you will only demand when you are actually willing to buy that product. When you are actually willing to buy that product, then only you will demand for this. So willingness is very essential. And second thing is there are many products which we feel like that, I want this product. But then the problem is I don't have money to buy that product. Okay. So then the second thing which is important is if I am able to buy that product or not. Okay. So nothing gets in free. Of course, there is price involved. Okay. So when will a consumer demand the product? Consumer will demand the product when the consumer really want the product. Second, the consumer is really want to spend money to get that product. Okay. And then the third thing which is really important is it has to be bounded by the time. So the given or a fixed time period is also important. So now three things are there. When we simply say what is demand, or rather we should say what is effective demand. So to make the demand more effective, there are three things which are very essential. One is willingness of a consumer to buy the product. The ability to buy means the purchasing power to buy the product. And the third thing is the consumer has to decide it within the given time period. Then only we will call it as the demand or the effective demand. Okay. So the three keywords we have identified here is in the definition of demand is the ability of consumer to pay for it, the willingness to pay. Okay, willingness to pay. पैसा तो सबके पास है, but then whether the consumer really want to spend money on that commodity or not. And third thing is there has to be some given time period. I'll demand it after 20 years. That's not demand. Okay, after 20 years, so then there has to be a stipulated time. Okay, and which has to be quite less, quite short. Then only we will call it as effective demand. Otherwise, the demand won't be effective. Okay, it will remain as our want only. Okay. Now, let's see this case. When we say that you are demanding something, now on what factors your demand depends. So the demand basically depends on several factors. We'll be studying them in detail, but let us look at this case. If the demand of Coke has been increased, what we see, the prices of Coke has fallen. This can be the reason that the demand of Coke is increasing. कोई भी चीज जब सस्ती होगी तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है. Yes, of course. Then what other factors are there which will lead to increase in demand of Coke? Okay, so these other factors are, second thing is the prices of Pepsi has increased. Now Coke and Pepsi, these two are alternate goods. Okay, you will either have Pepsi, you will either have Coke. You will have preference for Coke or you will have preference for Pepsi. So in that case, if the prices of Pepsi has increased, you'll feel like, okay, let me have Coke. But this will only happen when you consider Coke as substitute good for Pepsi. If you have you have the preference for Pepsi कि मुझे तो Pepsi ही चाहिए, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. But if you consider Coke as the nearest or the closest substitute of Coke, तो ये वाला चीज होगा that the prices of Pepsi is increasing, you are okay, let's have Coke, no problem. Okay. Third factor is when the income of consumer is increased. So when consumer is having higher income or the consumer's income has increased, consumer might consume more amount of Coke. Okay, with lower income, अब यहाँ income का हम लोग बात करें, मतलब income, the disposable income we are talking about. The consumer is willing to spend that income on goods and services.
ना, उस इनकम का हम लोग बात कर रहे हैं. So if it is increasing, we might be consuming more coke. Okay. The next is summer has come. Summer has come means what? For this particular good, okay, in winters we prefer less cold drinks. Okay, in winters we prefer hot beverages. So summers में क्या चीज हो रहा है? If summer has approached, then in summer the consumption of cold drinks automatically increase, and if our preference is coke, then definitely we'll be having more coke. Okay, so summer is favorable to this particular commodity. Okay, similar, if the commodity is something which is more consumed in winters, तो हो सकता है उनके लिए favorable situation कब होगा? When the winter comes in. Okay, next is in future prices of coke may rise. Okay, now in future if we are seeing that prices of coke is about to rise, then what people do, if people are to consume coke, they'll buy it in advance, keep it with them, so that फ्यूचर में जब प्राइसेस बढ़ेगा उनको फ्यूचर में बाय करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अभी से बाय करके अपने पास में रख सकते हैं. ओके, सो दिस इज वन थिंग. देन कम्स इज पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड. नाउ व्हाई दिस कंपनी कोक प्रेफर्स इंडिया? रीजन बीइंग द पॉपुलेशन इज सो मच. Okay, and the population is continuously increasing. So there are many countries who are seeing India as the retail market, because we have got huge population, and for products like the FMCG products or retail products, इनके लिए India is a huge market. Okay, so if population is increasing, obviously the consumption of the particular commodity will increase. Here in this case, the consumption of coke will increase. And the last but not the least is equal income redistribution. If redistribution of income is equal, मतलब कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ लोग हैं जिनके पास कंट्री का मैक्सिमम पैसा है, और थोड़ा सा पैसा जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डिवाइड हो रखा है. अगर ऐसा सिचुएशन है तो कभी भी किसी भी गुड का डिमांड जो है वो रेज नहीं होगा, क्योंकि फिर ये होगा कि जो हायर इनकम वाले होंगे वही कंज्यूम करेंगे, जो पुअर इनकम वाले लोग हैं, और अगर वो मेजोरिटी में है तो उनका ज्यादातर जो टाइम है, ज्यादातर जो पैसा है वो किस में चला जाएगा? इन दी इसेंशियल गुड्स ओनली. तो जो गुड्स ऑफ कंफर्ट होते हैं, द गुड्स दैट कंज्यूमर वांट्स, वो सारे बिकेंगे ही नहीं. ओके, सो टू इंक्रीज द मार्केट ऑफ कोक, कोक बीइंग अ गुड जो इसेंशियल नहीं है ना, जो सॉर्ट ऑफ मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे कंज्यूम करना है, मुझे कंफर्ट देता है इसलिए मुझे कंज्यूम करना है, ठीक है, मेरा पर्टिकुलर टेस्ट या प्रेफरेंस उस चीज के लिए इसलिए मुझे कंज्यूम करना है. ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स वाले केस में जनरली ये देखा जाता है कि जिस कंट्री में जो इनकम इक्वालिटी है अगर वो ठीक होती है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है. ओके, सो दिस इज वन एग्जांपल. सो व्हाट वी हैव सीन कि जैसा हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिमांड में केवल प्राइस मैटर नहीं करता है ना, प्राइस इज वन फैक्टर, कि प्राइस की वजह से ऑब्वियसली द डिमांड फॉर कोक विल इंक्रीज और डिक्रीज, बट प्राइस के अलावा भी देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड कि कोक का डिमांड ज्यादा होगा या कम होगा. ओके, नाउ दिस वाज द केस, यू हैव टू कीप दिस इट इन माइंड, एंड नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड. ओके, जैसे मैंने बोला कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच विल डिसाइड द डिमांड फॉर कोक. वन ऑफ द फैक्टर एंड द वेरी मेजर फैक्टर इज द प्राइस ऑफ कोक इटसेल्फ. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि कोई भी कमोडिटी का जब प्राइस राइज होता है तो उसका डिमांड कम होने लग जाता है. ओके, so like here in this case, if we see, there is an inverse relationship between price and demand. Price and demand. If price is increasing, the demand will fall. Okay, and this law of demand will only work when we are keeping rest of the factors as constant. जैसा हमने देखा था ना यहाँ पे. Okay, if we see, let me get to the previous slide. If we see here, so law of demand में क्या चीज हो रहा है? Only this factor we are changing, only this factor. Remaining these factors we are assuming that they are constant. If they being constant, the price of coke increases, तो coke का जो demand है वो क्या हो जाएगा? It will fall. coke का demand fall हो जाएगा. Yes, that's what law of demand is. So we are assuming these factors as constant. अब इन factors की हम लोग list एक बना लेते हैं. वो list मैं आपके सामने display कर देता हूँ कि वो list कौन सी हो सकती है. There can be many more, but these are the certain factors जिनको हम लोग आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे. But these are the factors which we are assuming that they are constant, जिसको हम लोग लैटिन वर्ड में बोलते हैं ceteris paribus, जिसका मतलब होता है other things being constant.
Okay, so that's what law of demand is. Next slide में ज्यादा easily हमको समझ में आ जाएगा that there is negative relationship between price and demand. कैसे काम करेगा price and demand? If the price is rising, the demand is falling. If the price is falling, the demand is rising. You can have a look at this. Okay, so this you have to keep in your mind. And while we are considering the change in price, while we are considering changes in price, we are considering that other factors are inactive. Okay, they are not changing. They are constant. They are at ceteris paribus. Okay. So that's what law of demand is. Now, we'll have the graphical explanation of law of demand. So whenever we have negative relationship between any two variable, we always have our curve as downward sloping. This you have to remember. Okay, whenever there is negative relationship between two variables, here in this case it is between price and the quantity demanded. There is negative relationship, therefore the demand curve will look like downward sloping. Now this downward sloping, what does it indicate? It indicates if the price is increasing, if the price is increasing from 6 to 8, what we are observing at 6, at price 6, the quantity was 80. Now since price has increased to 8, the quantity has decreased to 60. So what we are observing, that the price is increasing and quantity is falling. Okay, so that's what law of demand is, and this is how we can express it in terms of graph. Okay, then closely look at these points. This was our initial point and this was our next point. So what we are observing, at 6, at price 6, the quantity demand was 80, so we were having this point. Let's give this point, the name is A. Now since our price has increased, our quantity is decreasing, so from A point we are reaching to point B. So what we see on this demand curve, there is a movement. Movement means this point A is moving to point B, which is resulting into fall in the quantity. This particular thing is called as contraction. This particular thing is called as contraction of demand. Contraction of demand. Okay. So contraction का मतलब क्या होता है? Contraction मतलब in Hindi it is सिकुड़ना, कम होना. Contraction means कम होना. तो कम होना, so क्या कम हो रहा है इधर? 80 से 60, the quantity is decreasing. Okay, so quantity contract हो रही है. तो A से B की तरफ जब जा रहे हैं तो quantity कम होती हुई नजर आ रही है. This is called as contraction of demand. Okay, now I hope this one is clear to you. इसको पहले erase कर देते. Okay, now see. Next what we see, now this time the price is falling. So again, if there is inverse relationship, means if the price is falling, the quantity has to increase. The quantity has to increase. So from point A, we are reaching to point C. This was point B. Now we are reaching to point C. So from point A, we are moving to point C. In this case, what is happening? Earlier the quantity was 80. Now the quantity has become 100. Matlab quantity is increasing. Quantity is increasing. So we'll give it a term. We will call it as expansion in demand. We'll call it as expansion in demand. This was contraction in demand. Okay. So along with law of demand, you also understood this very important concept of contraction of demand and expansion of demand. Okay, so that's what law of demand is. Now these two things you will have to keep in mind. पर अब ये किस वजह से हो रहा है? Why contraction and expansion are happening in the demand? It is because of changing in the price. Since the price is changing, therefore contraction and expansion is happening. So we'll write these two things are happening due to change in price. Contraction कब होता है? When price increases, and expansion कब होगा? When price falls. Okay, so this you can make a short note of this, और ये आगे बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है. ठीक है? Okay. So this was the explanation of graph, how it is. Then next we have got is
ग्राफ हमने पढ़ा. नाउ डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब क्या होता है? शेड्यूल सिंपली मीन्स द टेबल which shows this relationship between price and the demand. So schedule is nothing but schedule is a table. Okay, so in tabular format we will be expressing the law of demand that says, see, when the price is 10, the quantity demanded is 8. Now the price has increased to 20. Now because of this increase in price, what we observe, that the quantity is falling. The quantity is falling. The price is further increased, the quantity is falling. The price is further increased, the quantity is falling. So what we see in this table, that the price is continuously increasing, whereas the quantity demanded is continuously falling. So this also shows. Now we can change the numbers, and it is not necessary that they'll always be, they'll always progress in a constant manner or same ratio. For example, यहाँ 10-10 का difference है, यहाँ 2-2 का difference है. तो for the sake of making it easier, we have kept this way. Otherwise ये random numbers भी change हो सकते हैं. But then the pattern has to be कि price increase हो तो quantity demand हमको कम होती हुई नजर आनी चाहिए. Okay, so there has to be a seesaw thing. Okay, one is increasing, the other is falling. Okay, so this is tabular explanation of that. On this, the next slide we have here, we have put both the things together. So you may, if you wish, you can note down this also. Okay, so the same numbers we have plotted in the graph, and we have got a demand curve here. Okay, now there are various types of demand. So first pair that we have is the individual demand and market demand. अभी देखो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली. ओके, तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या हो गया? व्हेन द डिमांड इज डन बाय जस्ट वन पर्सन. अगर एक ही बंदा डिमांड करता है एक प्रोडक्ट की, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड. देन व्हाट इज मार्केट डिमांड? when so many people in the market are demanding one product. तो अभी हो जाएगा कि क्या मार्केट डिमांड इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और नॉट? क्योंकि हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अबाउट इंडिविजुअल, तो यहां तो बहुत सारे लोग आ गए, तो विल इट बी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और नॉट? तो इन दिस वे वी हैव टू सी इट कि इंडिविजुअल जो डिमांड कर रहा है वो एक ही प्रोडक्ट की कर रहा है, और मार्केट जो डिमांड कर रहा है वो भी एक ही प्रोडक्ट की कर रहा है. सो इंडिविजुअल इज व्हाट? इंडिविजुअल इज द प्रोडक्ट. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है. सो व्हेन वन प्रोडक्ट इज डिमांडेड बाय वन पर्सन, वी कॉल इट एज इंडिविजुअल डिमांड, एक बंदे की डिमांड. When so many people are demanding that same product, then we will call it as market demand. तो यहां पर प्रोडक्ट एक ही है. ओके, इवन द नंबर ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे देखते हैं. नाउ लेट अस सी इट ग्राफिकली, है ना? ग्राफिकली कैसे ये नजर आएगा हमको. तो उससे पहले चलो टेबल देख लेते हैं हम लोग. टेबल में क्या देखते हैं हम लोग? देयर आर थ्री इंडिविजुअल्स, individual A, individual B and individual C. So there are three people in the market. अब for example, if the price of any product, है ना, let's say price of a pen, these are various prices of. जब पेन का प्राइस 10 रुपीज होता है, तो जो A इंडिविजुअल है इसको 7 पेन चाहिए. B इंडिविजुअल का अलग हो सकता है पेन का डिमांड, है ना, तो उसको 10 पेन चाहिए. C इंडिविजुअल ये थोड़ा और रिच है तो इसको 12 पेन चाहिए. So same product, okay, now mark this statement, same product at same price can be demanded in different quantities by different individual. ठीक है, एक ही प्रोडक्ट एक ही प्राइस पर अलग अलग लोगों को अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए होता है, ऐसा पॉसिबल है ना? तो यही तो होता है मार्केट के अंदर कि कोई एक, हम मार्केट में जाके देखते हैं कि जैसे सब्जी मंडी हो गई, सब्जी मंडी में हम लोग गए तो एक ही प्राइस पर चल रहे हैं. मान लो पोटैटोज आर एट सेम प्राइस, है ना, 20 रुपीज पर केजी. तो वहां जो लोग आते हैं वो सारे 20 रुपीज पर केजी पे ही खरीद रहे हैं, लेकिन सबको अलग अलग क्वांटिटी पे खरीदना है. किसको 2 किलो खरीदना है, किसी को 5 खरीदना है, किसको आधा किलो खरीदना है, किसको 20 किलो खरीदना है. तो डिपेंड्स ऑन देयर नीड, देयर रिक्वायरमेंट. ओके, तो वो हो सकता है. नाउ जैसे ही इसका प्राइस क्या हुआ, बढ़ा, यानी प्राइस बढ़कर पेन का हो गया 20, तो हम क्या देखते हैं, सारे लोगों की डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई.
प्रीवियस डिमांड से कंपेयर करेंगे तो सबकी डिमांड कम होगी, मतलब लॉ ऑफ डिमांड यहाँ काम कर रहा है। नाउ क्वांटिटी फिर वापस से चेंज होगी, है ना। तो ए जो है वो अभी क्या कर रहा है, 6 की डिमांड करता है, बी जो है वो 8 की करता है, सी जो है वो 8 की करता है, ठीक है। तो ये रैंडम हो सकता है। फर्दर प्राइस इंक्रीज होती है तो फर्दर डिमांड क्या होती है, तीनों की कम होती है, फर्दर 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 ऐसा करके तीनों का। तो ये तीनों का क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि मार्केट में ओनली दीज 3 कंज्यूमर्स आर देयर, तो क्या चीज हो जाएगा, ओनली इफ दीज 3 कंज्यूमर्स आर देयर, तो जो तीनों की डिमांड है उसको जोड़ने के बाद में हमको क्या मिल जाएगी, मार्केट की डिमांड। सो मार्केट डिमांड इज द एडिशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स। तो मार्केट डिमांड हमको मिल गई है टोटल, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा किसके, प्रोड्यूसर की, कि अब उसको देखो मार्केट के डिमांड के हिसाब से वो तय करेगा कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है, उसको कितनी सप्लाई करनी है, चीज होती है ना। सप्लाई इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हियर इट इज इंडिविजुअल डिमांड एंड देन दी मार्केट डिमांड। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे, ग्राफ वाइज देखते हैं ना। तो ग्राफ में तो सिंपल सा कुछ नहीं, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो यहां देखते हैं हम लोग, यहाँ हमने ए बी सी की बजाय सिंस स्पेस वाज लेस तो हमने ए और बी को ले लिया केवल, है ना। लेट्स से मार्केट में केवल 2 कंज्यूमर है, वन इज ए द अदर इज, तो हमने क्या बोला, मार्केट डिमांड क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड ए का डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड बी का डिमांड, दोनों का अलग डिमांड इंडिविजुअल कहलाएगा। बट मार्केट डिमांड इज जब ए और बी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ए प्लस बी का डिमांड, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट का डिमांड हो जाएगा। नाउ लेट्स सी इन मार्केट इफ द प्राइस इज ₹4, इन मार्केट इफ द प्राइस इज ₹4, तो ₹4 पर देखो ये हमारा ए का ग्राफ है, तो ए कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, 2। एट प्राइस 4 ए कितनी क्वांटिटी डिमांड करता है, ओके, ए इज डिमांडिंग 2। और बी कितनी डिमांड कर रहा है, सेम 4 पर, 4 प्राइस पर बी कितनी डिमांड कर रहा है, बी डिमांड कर रहा है 3 यूनिट्स, तो बी कितनी डिमांड कर रहा है, 3 यूनिट्स। तो टोटल मार्केट का डिमांड कितना होना चाहिए, 2 प्लस 3 यानी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखते हैं, ये द प्राइस हियर इज 4 एंड द डिमांड क्वांटिटी इज 5। ये हमारा ग्राफ बन रहा है। तो ये दोनों ग्राफ को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा तीसरा ग्राफ हमको मिलता है, ठीक है। अब इधर देखते हैं वापस से, इफ द प्राइस हैज डिक्रीज्ड, डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 2 हो गई। प्राइस डिक्रीज होने पर देखो ए का क्वांटिटी डिमांड कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। 2 प्राइस पर कितना डिमांड है इसका, 6। और बी का डिमांड कितना हो जाता है, एट सेम प्राइस, एट सेम प्राइस 2 पर इसका डिमांड कितना हो गया, यहां जाएंगे हम लोग तो 7, यानी कितना हो गया, ये 6 है, ये 7 है। ए का डिमांड एट प्राइस 2 इज 6, बी का डिमांड एट प्राइस 2 इज 7, तो मार्केट का डिमांड एट प्राइस 2 कितना होगा, 6 प्लस 7 विच इज 13। So this is how we are deriving individual curve. जैसे टेबल में हमने एडिशन किया था उसी तरह से हमने ग्राफ में एडिशन कर दिया। तो अब यहाँ डिफरेंस क्या नजर आएगा कि जनरली जब हम लोग देखेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड का हमको थोड़ा सा स्टीपर नजर आएगा, लेकिन जब दोनों को ऐड करेंगे तो मार्केट डिमांड कर्व थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड कर्व जो हमारा कैसा हो जाएगा, इट विल बी फ्लैटर। क्यों फ्लैटर होगा, क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व इज द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है। ये वाला पार्ट, आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। ग्राफ बना के अगर प्रैक्टिस करेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ओके। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, so you'll be solving it। सिंपल सा फंडा ये हमारे पास में है कि ए का डिमांड है, बी का डिमांड है, दोनों को जोड़ेंगे तो मार्केट डिमांड निकलेगा। तो सिंपल प्लस माइनस करके यू कैन मेक दिस टेबल, ठीक है। तो आराम से पॉज करके पहले इसको बना लेना, बिकॉज नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू द आंसर्स, ठीक है। तो आंसर टू दिस इज these are, so you can match your answers along with this। चलो, now next type of demand is ex ante demand and ex post demand, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें केवल कीवर्ड को आपको दिमाग में रखना है, कीवर्ड आई विल बी हाइलाइटिंग इट। एक्स आंटे डिमांड का मतलब क्या हो गया, वो डिमांड जो मैं चाहता हूं कि मैं करूं, आई एम प्लानिंग मैं इतनी डिमांड करूं, ओके। दिस इज नॉट एक्चुअल वन, दिस इज आई एम थिंकिंग टू बाय, आई हैव इंटेंट टू बाय, आई एम विलिंग टू बाय दिस मच ऑफ क्वांटिटी, तो वो क्या कहलाएगा, मेरा एक्स आंटे डिमांड, ठीक है।
विच इज ऑल्सो नोन एज प्लान डिमांड और डिजायर्ड डिमांड। मैं चाहता हूं यार कि मैं इतना खरीदूं, इस प्रोडक्ट को इतनी क्वांटिटी में खरीदूं, दैट इज माय एक्स एंटे डिमांड। नाउ एक्स पोस्ट डिमांड क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा सा अलग, विच इज एक्स पोस्ट का मतलब क्या हो गया, एक्चुअल में मैं उसको खरीदने वाला हूं या मैंने उसको खरीद लिया है, एक्चुअल में वो डिमांड हो गई। तो एक्स पोस्ट डिमांड इज मोर इफेक्टिव डिमांड, ठीक है, जहां पर एक्चुअली द कंज्यूमर इज बाइंग दैट। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्चुअल डिमांड। ओके, so plan demand, desired demand, and then actual demand. So ex ante matlab I am thinking, I am planning, I am willing to buy some quantity of a commodity. Ex post demand is actually I have bought that commodity. Okay, now next we have is joint demand. Joint demand matlab kya ho gaya, when two goods are demanded simultaneously, एक के बिना दूसरे का काम चलेगा। आपने कार खरीद ली, पेट्रोल की डिमांड आप करोगे ही करोगे, है ना, चलाओगे किसको उससे, अनटिल अनलेस जो भी कोई भी फ्यूल होगा वो, है ना, चाहे वो सीएनजी होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड होगा। बट देन देयर आर टू कमोडिटीज विच आर डिमांडेड टुगेदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट डिमांड। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, यू सिंपली हैव टू लुक अराउंड यू एंड यू विल फाइंड कि जॉइंट डिमांड क्या क्या हो सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई एम टीचिंग यू थ्रू दिस स्क्रीन, ठीक है, लेकिन इस स्क्रीन से मैं पढ़ा तो आपको रहा हूं, लेकिन आप तक कैसे आ रहा है वो, बिकॉज द कैमरा इज देयर इन द फ्रंट। तो मेरे लिए जॉइंट डिमांड क्या हो जाएगा, दिस स्क्रीन टू टीच यू और यू नो टू टीच यू ऑनलाइन और टू रिकॉर्ड माय वीडियोस, आई नीड दिस स्क्रीन, आई नीड द कैमरा, सो आई हैव डिमांडेड देम टुगेदर, दिस मेक्स इट जॉइंट डिमांड। ठीक है, और क्या हो सकता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और जैसे इरेजर एंड पेंसिल। पेंसिल मैंने खरीदा है तो इरेजर भी साथ में उसके खरीदता ही हूं मैं, ठीक है। जैसे टी एंड शुगर, ये भी जॉइंट डिमांड हो सकता है, ठीक है। टी एंड बिस्किट्स, ये भी जॉइंट डिमांड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो आपको खोजना है, ठीक है। आई कैन स्पीक नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बट उसका कोई खास मतलब नहीं निकलेगा। द हिंट इज दीज गुड्स आर मेजरली द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब एक गुड के साथ में दूसरा गुड चाहिए चाहिए, वरना काम चलता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने शूज ले लिए, आजकल थोड़ा सा अलग ट्रेंड है, बट जनरली शूज एंड सॉक्स दे आर डिमांडेड टुगेदर, ठीक है। बट आजकल कभी कभी नहीं भी पहनते हैं, सो दैट इज अगेन द थिंग ऑफ फैशन और द वॉग। बट ऐसा होता है, देखो इंडिविजुअली टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाइज तो बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती है ना। जैसे जॉइंट डिमांड में जैसे मैंने स्क्रीन और कैमरे का एग्जांपल दिया, अभी किसी किसी को रिकॉर्ड नहीं करना है तो उसको नहीं चाहिए वो वाला कैमरा, कोई कोई मोबाइल से उसको रिकॉर्ड कर सकता है, तो वो प्रेफरेंस वाइज भी डिफर करता है। बट जनरली इफ वी सी कि प्रोडक्ट के बीच में आपस में कोई रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, तो जनरली उन दो चीजों को साथ में खरीदा जाता है। तो दैट्स व्हाट जॉइंट डिमांड इज। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिराइव्ड डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे पास में है। डिराइव्ड डिमांड मतलब जब एक प्रोडक्ट की डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कर देती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, अगर होटल सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, कोई एक टूरिस्ट प्लेस है, उस टूरिस्ट प्लेस पे पीपल आर विजिटिंग मोर, है ना। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना, तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग गए उसको देखने के लिए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तो बना, लेकिन उतनी नंबर ऑफ होटल्स पहले थी नहीं। लेकिन जब इतने सारे टूरिस्ट वहां पर जाने लग गए तो वहां होटल्स की डिमांड जो है वो बढ़ने लग गई। अब होटल्स की डिमांड बढ़ी तो क्या हुआ, होटल्स का कंस्ट्रक्शन होने लग गया, होटल्स वहां पर बढ़ गई, यानी होटल सर्विसेज की डिमांड वहां बढ़ी। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, होटल के अंदर जो लोग काम करने वाले हैं उनकी डिमांड भी तो बढ़ेगी, क्योंकि अब जब नंबर ऑफ होटल ज्यादा है तो उसके अंदर काम करने वाले लोग भी तो ज्यादा चाहिए। तो हुआ क्या, होटल सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की वजह से लेबर की डिमांड भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ, अब इस तरह से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं कि एक की डिमांड बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी बढ़ जाए, एक की डिमांड कम होने से दूसरे की डिमांड भी कम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिमांड ऑफ वन लीड्स टू डिमांड ऑफ द अदर, ये लाइन आप एग्जाम, ओके। इसके और एग्जांपल आप खोजना, ठीक है, एंड देन लेट मी नो। देन वी हैव कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसी कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, है ना। मल्टीपल यूजेस कैसे होते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग मिल्क ले लेते हैं। अब मिल्क के मल्टीपल यूजेस क्या है, मिल्क को आप क्या करो, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो।
सेकंड आप क्या कर सकते हो, मिल्क की स्वीट्स बना सकते हो, मिल्क का यूज करके क्या कर सकते हो आप उसको वो कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। उसके बाद में क्या कर सकते हो, मिल्क का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, पनीर बना सकते हो, ठीक है। तो अब क्या चीज हो रहा है, मिल्क उसके मल्टीपल यूजेस है, अब इस चीज को समझना। अगर मिल्क की प्राइसेस बढ़ जाती है, मिल्क की प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल मिल्क का डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा। और ओवरऑल मिल्क का डिमांड कम हो जाएगा तो ये सारी चीजों का हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें नहीं बनाएंगे फिर, कि मिल्क महंगा हो गया। तो मिल्क की प्राइस बढ़ने की वजह से इन सब के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज कंपोजिट डिमांड। तो जब भी किसी कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ती है तो मल्टीपल यूजेस ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब सिमिलरली इस केस में अनियन भी हो सकता है, इस केस में इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस एकदम से बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हम बहुत सारे गैजेट्स में, बहुत सारे इक्विपमेंट्स में कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली फिर क्या करेंगे, उन सारे इक्विपमेंट्स को भी हम लोग कट डाउन करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो कम लोग एयर कंडीशनर खरीदेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो जो हम बड़ी बड़ी स्क्रीन खरीदते हैं उसकी जगह छोटी स्क्रीन खरीदेंगे, है ना। जो हम लोग रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो फिर हम लोग अभी जैसे 3 स्टार वाला भी खरीद लेते हैं, लुकिंग एट कि चलो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ज्यादा नहीं है, फिर हम 5 स्टार वाला खरीदेंगे, नहीं ऐसा इक्विपमेंट खरीदेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होता हो, है ना। तो क्या चीज होगा, जब किसी पर्टिकुलर चीज के मल्टीपल यूजेस होते हैं तो उसकी प्राइसेस बढ़ने या घटने पर बहुत सारी दूसरी जो चीजें हैं उनकी डिमांड के ऊपर भी असर होता है, ठीक है। So that's is we call it as composite demand. Okay. So I hope this one is clear to you. Okay. Now इसको हम लोग अभी यहाँ पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बाद में हम लोगों ने बात किया, लॉ ऑफ डिमांड मतलब सिंपली प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड द डिमांड इज डिक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग द डिमांड इज इंक्रीजिंग। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर लॉ ऑफ डिमांड को ही हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म में और ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया। उसके बाद में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़े। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हुए हम लोगों ने बहुत सारे एजम्पशन बनाए। उन एजम्पशन में एक एजम्पशन ये था कि जब हम प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को वी आर कीपिंग देम एज कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने डिमांड्स के अलग अलग टाइप पढ़े, जिसमें हमने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एक्स एंटे डिमांड, एक्सपोज डिमांड, डिराइव डिमांड, कंपोजिट डिमांड, ठीक है। फिर एक दो हो सकता है मिस कर गया हूंगा मैं, ठीक है। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड हम लोगों ने पढ़े, ठीक है, ज्वाइंट डिमांड। तो ये सारे को एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी जो हम लोगों ने शुरू में देखा था कि डिमांड के लिए केवल प्राइस इज नॉट द ओनली फैक्टर, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच आर रिस्पांसिबल। तो इस तरह से कुछ 10-11 फैक्टर्स है जिनके ऊपर हमारा डिमांड डिपेंड करता है। सो वी विल बी स्टडीइंग इन दी नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो टाइटल में आपको देता हूं, नेक्स्ट वीडियो विल बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ओके, चलो, थैंक यू।